Particularly, what Lodha ji and Vishal Nafatwal ji, what they have done respectively in Mumbai and Chitrakoot is unbelievable. Vans and trucks of food going into be it urban areas or rural areas with free food for all. Unbelievable. Unbelievable. Granthali Prakashan, I think you are a part of our life. Because as much as we read, most of it comes from you. Chandrakant ji, thank you, apan attend karat Prasad Oak, such a dear friend. You know, there are some people you meet and you click immediately and a bonding takes place immediately. So Prasad ji, thank you for coming. You are one of them. Adaniya Jyoti Tai is my older colleague. She is my older sister. And thank you, Jyoti Tai, for coming at such short notice. And and last but certainly not least, I had saved this up for the last. Nayab, I'm doing this with your permission. We spoke about Asha Didi, 90 Touchwood. Now I am, Nayab, don't stop talking to me after this. I am 52. I have a photograph of my first birthday with Pankaj Bhai holding me in his hands. So, drinking from the fountain of youth, I think this stage is the example of what it is. If I have inadvertently left out anybody, my humble apologies. After this is the award. And after that, there will be an intermission, and after which, for a very special performance, I would, as a student of music and as a fan of music, I would ask everybody to make sure that you don't miss this. The great Kathak dancers, Vidushi Maromi Medhi and Vidushi Megharanjini Medhi, have come all the way from Assam only to perform at these awards. These are the 81st awards, and for the first time ever, an artist has come from Assam. And let me tell you, when Usha Didi and I were in Assam, when we saw their performance at an event organized by my very dear friend Debojit Bhuyan, who is here from Prague News, Guwahati, when we saw that event, we were spellbound. We said, we can't imagine कि ऐसा हो सकता है. So don't miss it. Be it Bhav, be it Abhinay, be it Ginti. It is unbelievable. Don't miss it. Followed by that is our dear family friend, my dear brother Rahul Deshpande ji, who is again going to be kind enough to come and regale us. You know what a great maestro he is. And followed by that, there is the great Padma Shri Hariharan ji, again a great maestro. You will truly enjoy the performances. And as I promised, there's one more bouquet of flowers to be given. The roar will say it all. Zanai, can I ask the person next to you to come onto the stage, please? Thank you. Thank you so much. हो मराठीत हसतं कसं आणि गुजरातीत हसतं कसं दाखव गुजराती हसी और मराठी हसी और हिंदी हसी एक ही है तो भाषा के लफड़े में नहीं गिरना प्यार मोहब्बत से जिंदा रहो जास्त काही बोलायला येत नाही असं चालू इकडे लोधा साहेब आशाजी आई आणि स्टेट पर जितने भी बड़े बाबा लोग हैं मेरे
सबको मेरा प्यार, आप सबको भी बड़े ऊपर, बहुत ऊपर तक मिले। अच्छा लगा, आज का दिन बहुत शुभ दिन है मेरे लिए कि मुझे यहाँ बुलाया। मैं तो ऐसे कंपलसरी ब्लाइंड है, फैमिली फ्रेंड है मैं, तो इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ, आराम से सुन रहा हूँ और अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाले हैं, बड़े मज़ेदार है। दे सिंग फैंटास्टिक, दे आर कोहिनूर्स जो भी आएंगे इसके बाद, उन सबको सुनेंगे। जास्त बोलते हो, टाइम खूब खा, भूख भी लगा, मैं तो वड़ा पाव भी खाया, आप लोग ने नहीं खाया। I love you everybody. प्रेम ठेवायचं, आणखीन कायच नको, श्वास और प्यार, बाकी समजे बहुत भांडण खूप आहे तसंच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भेटूया परत लवकर। ऑल माय लव्ह। I'll invite the masters of the ceremony to take over, please. थैंक यू सो मच आदि जी। छोटे कंधों पे बहुत बड़ा भार है, प्रिविलेज भी है, ऑनर भी है, और बहुत बड़ी बात है कि मंगेशकर फैमिली, सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श सबसे पहले। और ये जो अवार्ड हम अनाउंस करने जा रहे हैं वो आशा जी का है। तो ये बड़ी लिस्ट मुझे दी थी काम की, आशा जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि अवार्ड्स एंड ये वो। मैंने सोचा भी मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया आशा जी को जानती है, आशा जी के अवार्ड्स के बारे में जानती है। मैं अपनी तरफ से ये साइड में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं दुनिया को कुछ बता सकूँ। पूरी दुनिया जानती है कि ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेशन हुआ या कितने सालों में कौन कौन से अवार्ड मिले। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं क्योंकि जब भी आशा जी से बात होती रही हमेशा मैंने देखा है कि ये अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें तो सब जानते हैं, लेकिन आशा जी की लाइफ में कितने उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहे हैं और कितनी स्ट्रगल रही है वो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए कुछ शब्द डेडिकेट करना चाहूँगा। आशा जी, कितनी भी तकलीफें जीवन में होती हैं, कितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हमें वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, राह की खीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है और भाग्य से अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहाँ बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहाँ बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहाँ फंसी कश्ती, विपदा में भी मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है और अपने हिस्से का सूरज खुद खींच के लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहाँ बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहाँ बंधी है हम जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। क्या पत्थर की बंदिश से बहती नदियां रुकती हैं? क्या पत्थर की बंदिश से बहती नदियां रुकती हैं? क्या हालातों की धमकी से अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है और जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है। मैं ये डेडिकेट करता हूँ आशा जी को क्योंकि ये स्ट्रगल, ये चीज़ें ये दिखती नहीं हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए आइडल हैं क्योंकि ये संघर्ष और ये कर्म पे विश्वास करने का जो एक आइडल होने का यही है कि कर्म पे विश्वास करते हैं। चमत्कार लोगों को लगता है कि चमत्कार है, लेकिन ये इतने साल का संघर्ष और ये कर्म है जो ये चमत्कार दिखाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज आशा जी, राधे जी, अब आप संभालेंगे। Can we have the award, please? waiting right now.
माइक इसलिए लाई हूँ कि कोरोना की वजह से उसको निकाल देते। शंकरराव जी वाचस्पति हैं, उसके बाद मेरा भांजा आदिनाथ उतना ही टाइम लेता है। मराठी बोलूँ का हिंदी? मराठी। आधा हिंदी आधा मराठी। लोढ़ा साहब और यहाँ सब बैठे हुए लोगों को मैं बहुत प्यार भरा और मफतलाल जी को भी सबको आशीर्वाद करती हूँ, नमस्कार नहीं करती, आशीर्वाद। मेरी उम्र ऐसी है कि मुझे आशीर्वाद ही देना चाहिए। ये अवार्ड देने के लिए अगर वो होती तो कितना अच्छा होता। उसके बगैर मैंने आज ये अवार्ड लिया है। ये सबसे मेरे लिए सबसे दिल के पास ये अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। लता मंगेशकर। मैं वहाँ बैठे बैठे ये लाइट के चक्कर में मैं सोच रही थी, मैं पीछे चली गई। बहुत साल पहले हमारे पिताजी, माताजी और हम पांचों भाई बहन सांगली में रहते थे। सांगली में मेरा जन्म हुआ, भाई का जन्म हुआ, उषा का जन्म हुआ। दीदी और मीनाताई इंदौर में जन्म हुए उनके दोनों के। और मैं सांगली पहुंच गई थी। छोटी सी मैं, दीदी छोटी सी, हम सब खेलते थे। मैं उसकी चोटियां पकड़ के उसको झुका लेती थी और मैं पता नहीं क्या क्या खेलते थे। हम लोग पांचों भाई बहन एक साथ खेलते थे। ये हृदय तो बहुत छोटा था और उषा छोटी थी। मीनाताई और दीदी और मैं बहुत खेलते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, 200 लोग काम करते थे हमारे पिताजी के ड्रामा कंपनी में। तो वो मालकिन बुलाते थे हमको। पिताजी चले गए। जहाँ 2 सेर दूध का मक्खन अकेली मैं उसकी मलाई खा जाती थी दोपहर को और दूध पीती थी और क्या करती थी। पिताजी अपने साथ सब मलाई लेकर चले गए और हमारे ऊपर बहुत अच्छा वक्त नहीं था और हम कोल्हापुर गए। कोल्हापुर में दीदी काम करती थी, हम लोग काम करते थे। पिताजी ने एक ही कहा था, प्रासादी शिखरु स्तूपी काकोन गरुड़ायते। इसका मतलब है कि किसी को समझ आया होगा तो इसका मतलब है कि छलांग मारना है आकाश में तो कौवे के जैसे नहीं, गरुड़ों के समान मारो। वो हम बहनों के दिमाग में था। दीदी, मैं, भाई, सब हम लोग। मेरा भाई इतना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। मेरी छोटी बहन बड़ी पेंटर है, कलाकार है। वो पेंटिंग करती है, बहुत अच्छा उसका हाथ है, गाती भी है वो। मेरी बड़ी बहन मीनाताई 92 की अभी, तो वो भी म्यूज़िक पर। कोई मराठी घर ऐसा नहीं होगा कि उसका गाना चॉकलेट का बंगला सबके घरों में, मराठी घरों में था। बराबर है, चॉकलेट का बंगला। तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर थी। उसके बाद हम कोल्हापुर से बम्बई आए। बम्बई में हमने अपने करियर शुरू किया और आज तक मैं 13 साल की उम्र से, मतलब अपनी 13 साल की उम्र से 43 में 10 साल था, सॉरी 43 में मैं 10 साल की थी। मेरा 33 का जन्म है और 43 में मैं गाना पहला गाया मैंने, मराठी गाना। तब से लेके आज तक मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और प्रोग्राम भी करती हूँ। अब 90 साल चल रहा है। देखो भगवान कब तक आप
के सामने मुझे रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने गाने कितने भी गाए हो, कुछ भी, कितना ही कलाकार बड़ा हो, आपके बिना कोई कलाकार बड़ा नहीं है। अगर आप ना सुने तो हम कुछ नहीं हैं। ऐसे होता है, बहुत बड़े गाने वाले आते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आते। मैं और दीदी आपको पसंद आ गई, इतने साल, कितने शतक हो गए। हम दोनों बहनें आपके घरों में हमेशा रहती हैं और रहेंगे, दोनों बहनें रहेंगी। मेरा तो खैर छोड़िए, दीदी का तो जब तक सूरज चांद है तब तक उसका नाम रहेगा, उसको लोग याद करेंगे। उसका जो ये अवार्ड है ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। और मैं, आप बोलेंगे अपने घर का अवार्ड है, इसको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में, लेकिन मेरे भाई की नज़र में शायद हो सकता है कि मेरे से बड़ा कोई, मतलब उम्र में, और कोई आर्टिस्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे दिया, मुझे चुना, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग इतना प्यार से यहाँ आते हैं और आए हैं, हमेशा आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये गैलरी है दूसरी, पहली, मेरा गाना सुनने के लिए भी आप आते हैं और आज भी आप आए हैं। मैं क्या कहूँ, और विद्या बालन जी इतनी सुंदर दिख रही हैं, और क्या बोलूँ मैं उसको। मैं अभी दीदी का आपको एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ। गाना नहीं, उसकी याद, आपको उसकी याद आएगी, और मेरे भाई का संगीत। अभी मैं ज़रा काँप रही हूँ, तो थोड़ा सा शायद ठीक नहीं होगा। और दीदी का गाना वो भी, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना, फूले बेचता बहरू कलियासी आला, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना, फूले बेचता बहरू कलियासी आला, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना, मोगरा फूलना। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। लव यू टू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू। महफिल 1984 में उन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में लाइव परफॉर्मेंस दी, 1985 में नायाब, और 1986 में आफरीन जैसी कई हिट फिल्में दर्ज की। गजल गायक के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्होंने महेश भट्ट साहब की फिल्म में भी एक अपीयरेंस किया, जिसमें उन्होंने गाना गाया। शायद आप सबको याद होगा, हम भी छोटे थे, काफी रोए थे उस गाने में, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। तो वो सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था, सुपर डुपर हिट हुआ था, और उसके बाद से इनकी लोकप्रियता और बढ़ी। एंड उसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में, एक से एक फिल्मों में संगीत दिया, और बाहर कार्यक्रम भी किए, गजल के कार्यक्रम अब्रॉड, ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम दिए। 1985 में सर्वश्रेष्ठ गजल गायक के रूप में उन्हें AK सहगल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1996 में उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। 2006 में पंकज उधास जी को भारत के चौथे सबसे बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। प्लीज तालियों का स्वागत तालियों से और कीजिए, थोड़ा तालियां तो हल्की हल्की सुनाई नहीं दे रही यहां तक, ऊपर भी लोग हैं प्लीज। मैं अनुरोध करूंगा कि पंकज जी भी प्लीज कुछ शब्द कहें हम दर्शकों के लिए, सबके लिए, श्रोताएं। गजल 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 गजल। स्टेज पे विराजमान माननीय श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, आशा ताई और दूसरे महानुभाव, दोस्तों, भाइयों बहनों, यहाँ बैठे बैठे कुछ यादें ताज़ा हुई। मुझे अभी भी याद है, जिसको कह सकते हैं विविड मेमोरी, कि पंडित जी हृदयनाथ जी के सामने बैठ के गाने का मौका मिला, और वो भी गजल। अच्छा, बहुत छोटी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 17 और 18। तो शायद उस उम्र में बच्चों में थोड़ी निडरता होती है, बच्चे थोड़े ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो बड़ी हिम्मत करके पंडित जी के सामने मैंने फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाई कि दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। अच्छा, जब ये शेर पढ़ा तो देखा कि थोड़ा सा पंडित जी का सर थोड़ा हिला, तो उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि नोबेल प्राइज मिल गया। इस महान विद्वान कलाकार के सामने गाने की हिम्मत करना वो ही बड़ी मुश्किल बात है। आज इस मंच पे मास्टर दीनानाथ प्रतिष्ठान की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और उसमें मेरा आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा सम्मान हो रहा है। बहुत सारी बातें मैं आपके सामने कह सकता हूँ, लेकिन भाषण करना मेरी आदत है नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के संगीत के इतिहास में एक ऐसा परिवार है कि जिसने 70-80 साल से भी ज़्यादा, मैं दीनानाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मंगेशकर फैमिली की बात कर रहा हूँ, लता जी से लेके अभी तक संगीत की परंपरा को ऐसा बरकरार रखा है कि इसका आने वाले दिनों में न सिर्फ जिक्र होगा, लेकिन इतिहास में पूरे चैप्टर लिखे जाएंगे इनके बारे में। मैं इस महान परिवार के सब सदस्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
और अपने आप को फिर से बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस ऑनर के लिए उन्होंने कंसिडर किया, मुझे ये मेरा सम्मान किया। मैं ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण जो मेरे ज़िंदगी के किस्से हैं, जो हिस्से हैं और जो कुछ सुनहरी यादें हैं मेरी ज़िंदगी के, उसमें से ये क्षण एक ऐसा है कि जो हमेशा मेरे दिल में और मेरे जहन में ताज़ा रहेंगे। मैं फिर से एक बार दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ईश्वर को पूरे परिवार के बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। गजल। थैंक यू सो मच पंकज उदास जी, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने कहा, हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उतना ही बहुत बड़ा है हमारे लिए। और किस्मत से मंगेशकर परिवार की छत्र छाया में हम हैं, उतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, जो कि विद्या बालन जी के लिए है और वो आ चुकी हैं यहाँ पे, तो उनका स्वागत करते हैं। और जैसे कि सारा देश जानता है कि बहुत एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने वुमेन ओरिएंटेड रोल को बड़ी खूबसूरती से निभाया है और कमर्शियल सिनेमा में उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्होंने एक रास्ता खोला। वेलकम विद्या जी। एंड यस, उनके अवार्ड्स की गिनती शुरू करते हैं और जिसमें उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित की गई थी। विद्या बालन जी लगातार 5 व्यावसायिक सफलता वाली व्यावसायिक फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 5 फिल्में उन्होंने एक के बाद एक हिट दी, जिसमें अभिनय किया और अपने आप को इस तरह स्थापित किया कि क्रिटिक्स ने भी उन्हें सराहा, उनकी तारीफ की। और विद्या जी मानवीय कारणों को भी बढ़ावा देती हैं, ये बहुत खास बात है उनकी। महिलाओं के शक्तिकरण का समर्थन करती हैं और वो भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य भी हैं। और उन्होंने इसके अलावा टीवी, फिल्म्स, यहाँ तक कि रेडियो पे भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। और उनकी फिल्मों की गिनती और है। विद्या बालन जी द डर्टी पिक्चर 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आशा ताई इज ऑल्सो कमिंग, प्लीज एक बार स्टैंडिंग ओवेशन दे दीजिए फिर से। आशा जी भी आ रही हैं। तो विद्या बालन जी की फिल्मों की बातें कर रहे थे हम और उन्होंने विद्या बालन जी ने 2011 में सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिखाया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला उन्हें और 7 फीचर फिल्म पुरस्कार। परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण 2005 में, उसके बाद पा के लिए 2009 में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री द डर्टी पिक्चर 2011, कहानी जैसे कई पुरस्कार जीते उन्होंने। 2012 में तुम्हारी सुलू, 2017 में इश्कियां, 2010 में शेरनी एंड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक अवार्ड भी जीता उन्होंने। स्वागत कीजिए उनका। कैन वी हैव द अवार्ड्स प्लीज। थैंक यू सो मच वेदनाथ जी, थैंक यू। विद्या जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए माइक संभालें।
थैंक यू। नमस्कार। आशा जी, हृदयनाथ जी और स्टेज पर उपस्थित सभी दिग्गज कलाकारों को मेरा नमस्कार और यहाँ प्रस्तुत सारी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। शब्द कम पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं बहुत ही अनलकी हूँ, अनफॉर्चुनेट हूँ कि कभी लता जी के गाए हुए गाने पे मुझे अभिनय करने का मौका नहीं मिला। पर 2015 में मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी। लता जी मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी और मैं बस उनको निहार रही थी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके एकदम पीछे बैठी थी और शायद उनसे किसी ने कहा कि ये लड़की आपको मंत्रमुग्ध होके देख रही थी, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से, और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक हफ्ते बाद मुझे ये साड़ी भेजी। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। और मैंने उनसे कहा था कि मैंने बड़ी हिम्मत करके उनको फ़ोन की, उनसे बात की, और वो मधुर आवाज़ मैंने एक बार फ़ोन पे सुनी है। मुझे आज तक यकीन नहीं होता, पर मैंने उनको बहुत दिल से मैंने थैंक यू कहा और मैंने कहा कि मैं आपसे आके मिलना चाहती हूँ। ये साड़ी पहन के मैं आपसे आके मिलूँगी, पर वो मौका मुझे कभी नहीं मिला। पर शायद उसी वजह से आज मुझे यहाँ चुना गया ताकि मैं उनसे मिली हुई ये आशीर्वाद को आप सबके सामने, आप सबके साथ शेयर कर सकूं। पर ये मेरे लिए बहुत बहुत, मतलब सभी के लिए जब लता मंगेशकर जी की बात होती है तो मतलब वो खुद स्वर हैं, वो खुद संगीत हैं। उससे आगे मैं क्या कहूँ। मुझे ये जो उनसे मुझे आशीर्वाद मिला है और आज जो अवार्ड मिला है, ये बहुत कीमती है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले हैं अपने करियर में, पर हर बार मुझे हमेशा लगा कि अच्छा, ये अवार्ड एक प्रशंसा है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट। पर आज लग रहा है कि ये सम्मान है। और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि लता जी का आशीर्वाद मुझे मिले, हमेशा मिलता रहे। और मैं बहुत खुशनसीब इसीलिए भी हूँ कि मेरा आशा जी के साथ एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। हम मुंबई से पेरिस एक बार हमने साथ में सफ़र किया था और मुझे लग रहा था कि ये मुझसे छोटी हैं। मैंने कहा भाई वाह, उम्र में मैं उनसे छोटी हूँ, पर एक्चुअली वो she still is so inspiring, she's so childlike। ये सब सुना था मैंने, पर जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो रियलाइज किया कि ये सब सच्ची बातें हैं। तो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो आशा जी, एंड टू रिसीव द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड टुडे is really a matter of honor and pride for me and my family, and I hope I live up to this honor through the rest of my career and my life. Thank you very, very much. विद्याजी, मनपूर्वक अभिनंदन। मंडळी, आपण पुढचा पुरस्कार देणार आहोत तो एक विशेष सन्मान आहे। डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांचा आपण सन्मान यापुढे करणार आहोत। त्यांना याआधी 2 वेळा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिळालेला आहे आणि आता
हा विशेष सन्मान कशासाठी आहे तो मी नेमकं सांगतो. MIT शिक्षण समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष असलेले विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांनी राजबाग लोणी येथे विश्वशांती संगीत कला अकादमी स्थापित केली. ज्या वास्तूला पाहून स्वर्गीय लता दिदी म्हणाल्या अद्भुत, त्या हे म्हणाल्या आणि त्या अकादमीचं अध्यक्षपद लता दिदींनी स्वीकारलं आणि अनेक वर्ष अध्यक्ष म्हणून त्या संगीत अकादमीचं काम बघत होत्या. उत्तराखंडातील माणा गावाजवळ सरस्वती नदीच्या उगमापाशी सरस्वतीचं मंदिर निर्माण करून त्या मंदिरात डॉक्टर कराडांनी लता दिदींचा अर्थात गान सरस्वतीचा पुतळा सरस्वती मंदिरात उभारला. आता यापेक्षा दिदींना आणखी मोठी आणि महत्वाची श्रद्धांजली ती काय. म्हणूनच मंगेशकर कुटुंबियांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आज त्यांचा सन्मान व्हावा अशी इच्छा आहे, परंतु त्यांना काही कारणाने त्यांच्या व्यस्त सगळ्या शेड्यूलमुळे येता आलं नाही ते. त्यामुळे त्यांच्या कन्या सौ ज्योतिजी हा सन्मान स्वीकारणार आहेत. मी ज्योतिजींना विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आपण टाळ्यांनी स्वागत करूया ज्योतिजींचं. मी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुरस्कार देऊन डॉक्टर कराड यांचा सन्मान करावा. धन्यवाद. MITच्या प्रतिनिधी म्हणून आणि डॉक्टर कराडांच्या कन्या या भूमिकेतूनही ज्योतिजींना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. पहिलं मी सगळ्यांचे इथे बसलेल्या मंगेशकर कुटुंबियांचे खूप खूप आभार मानते की हा पुरस्कार माझे वडील विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ MIT ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, यांना हा पुरस्कार दिला जातोय. आता सांगण्यात आलं की आधी 2 वेळेला हा पुरस्कार दिला गेलाय, पण यावेळेला वेगळं काय औचित्य होतं. मागच्या आधीच्या दोन्ही पुरस्कारांना दीदी ह्या मंचावर उपस्थित होत्या, पण आज दीदी आपल्यात नाहीत. पण हा पुरस्कार एक विशेष कार्यासाठी त्यांना दिला जातोय. डॉक्टर कराड हे नाव आपण एज्युकेशनच्या फील्डमध्ये गेले 40 वर्ष ज्यांनी अविरत अतिशय अतुलनीय कामगिरी शिक्षण क्षेत्रामध्ये केलेली आहे, पण त्याबरोबर सामाजिक त्यांचं जे कार्य आहे हे वेगवेगळ्या खेडोपाडी काढलेल्या शाळा असतील, शहरांमध्ये तर मोठ्या संस्था आहेतच, पण त्याबरोबर त्यांनी वर्ल्ड पीस साठी जो विश्वशांती गुंबद, संत ज्ञानेश्वर विश्वशांती गुंबद हा पुण्यामध्ये जो उभा केला आहे. जसं आता प्रसाद ओकजी म्हणले की दीदींचा आवाज हा विश्वाच्या अंतापर्यंत राहील, पण हा गुंबद ज्यांनी पाहिला आहे किंवा जे पाहतील हे विश्वामधलं एक रेकॉर्ड आहे जे अजून लोकांपर्यंत पोहोचतंय हळूहळू. पण ही शांतीसाठी त्यांनी प्रस्थापित केलेला हा विश्वशांती गुंबद हा विश्वाच्या अंतापर्यंत राहील अशी ही अद्भुत वास्तू त्यांनी उभी केली. त्यांचं प्रत्येक काम शिक्षण क्षेत्रातलं असलं, पण सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी हा विश्वशांती गुंबद, विश्वशांती संगीत कला अकादमी, आणि आज त्यांनी जेव्हा हे मंदिर बद्रीनाथमध्ये तुम्ही कधी कुणी गेला असाल तर मागच्या वर्षीच ह्या मंदिराचं तिथे प्रतिष्ठापना झाली. पण हे मंदिर जेव्हा उभं केलं त्यावेळेला दीदी होत्या, पण दुसऱ्या वर्षी जेव्हा मंदिराची पूजा करण्याचा परत त्याचं पूर्ण करण्याचं काम तिथे होतं. अवघ्या 63 दिवसात सरस्वतीचा उगम जिथे होतो तिथे हे मंदिर उभं केलंय. तिथे कुठली गाडी जात नाही, अशा अवघड खडतर ठिकाणी ते मंदिर उभं केलं गेलं अवघ्या 63 दिवसात. आणि तिथे सरांना जेव्हा दीदी ह्या जगाचा निरोप घेऊन गेल्या त्याच्यानंतर सरांना अतिशय सुंदर कल्पना सुचली की गान सरस्वती
तिची माहेरी परत पाठवण करायची, ह्या संकल्पनेतनं सरांनी अतिशय सुंदर पुतळा त्यांचा बनवला गेला आणि तो पुतळा सरस्वती मूर्तीच्या समोर, जिथे सरस्वतीचा उगम होतो, प्रचंड आवाज, नदीचा जो आवाज आहे त्या आवाजामध्ये जेव्हा ते मंदिर तिथे तुम्ही जाता तेव्हा असं वाटतं की सरस्वती काहीतरी आपल्याला इथे ऐकवतीये. असा पुतळा देवीच्या समोर सरांनी तिथे प्रस्थापित केला आणि जगाच्या अंतापर्यंत ते मंदिर तिथे राहो आणि आपल्या दीदी यांचं वास्तव्य तिथे राहो अशीच देवाकडे प्रार्थना करते. धन्यवाद. आपण सर्वांनी कराड सरांना हा पुरस्कार दिला त्यांच्या ह्या कार्याबद्दल, त्याबद्दल मी तुमची शतशः ऋणी आहे. धन्यवाद. Namaskar. A very, very warm welcome to everybody over here. A very warm welcome to Paramadarniya Shri Mantri Mahoday Mangal Prabhat Lodha ji. It's awkward for me to say welcome to Paramadarniya Ashatai and Paramadarniya Baba because it's their trust and I'm only speaking. A very warm welcome to all this galaxy of dignitaries who are present here. It is, it's absolutely, it's unbelievable the love with which everybody has come here. You have to switch the screen. Last year, on the 24th of April, all of us had gathered here, and everybody had come here and expressed their love and their fondness and in many cases their worship of Didi. We all know that last year on the 6th of February, the most colossal of tragedies hit not only our family but the entire world. For me, everybody who is present here on the stage and off the stage, each one of you is a part of the Mangeshkar family, each one of you is a part of the Lata Mangeshkar family. You have come here with so much love. Last year, you came here with so much love. And today, even in the audience, we have so many dignitaries who have come from all over India to express their love for Didi. We have an extremely special gentleman and an extremely special couple with us. He is the Chief and Principal Advisor to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Paramadarniya Yogi Adityanath ji. He has been so kind that he has come from Lucknow, especially with a letter of Paramadarniya Yogi Adityanath ji. I am going to read out that letter, sir, with your permission. I'm sorry when I said I forgot to mention the name. The Chief and Principal Advisor to the CM of UP, Paramadarniya Yogi Adityanath ji, is Shriman Avnish Avasthi ji. Thank you, sir. And he is present here with his wife, Adarniya Malini Avasthi ji. Everybody in the music world knows her. I think she rules the folk music of India, and particularly of UP. Madam and sir, we are so honored with your presence. Thank you. You will not believe it, but she knows thousands of compositions by heart. It is a scientific miracle, madam. Unbelievable. With your kind permission, I will read the letter that Paramadarniya Yogi Adityanath ji has written to Baba. Dear Pandit Hridaynath Mangeshkar ji, I am grateful for inviting me to attend the Master Dinanath Mangeshkar Puraskar and Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar ceremony in Mumbai on 24th April 2023. It is commendable that various dignitaries associated with music, cinema, social service, drama, sports and journalism have been conferred the Master Dinanath Mangeshkar Puraskar over the years. It is a matter of great pride
that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is the first ever awardee of the Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar, instituted in 2022. Master Dinanath Mangeshkar ji was a well-known theatre actor, a renowned musician, and an exceptional classical vocalist. His children enriched the legacy of their illustrious father. Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji was a stalwart of Indian culture whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerize people. Last year, on the occasion of Lata Didi's birth anniversary, the Lata Mangeshkar Chowk was inaugurated in Ayodhya. This memorial has been constructed by the government of Uttar Pradesh as a tribute to one of the greatest Indian icons. On this occasion, I convey my greetings to all, my best wishes for the entire endeavor. With warm regards, yours sincerely, Yogi Adityanath. On the 28th of September last year, in 2022, I had the privilege and honor of visiting Ayodhya. And I thank Avnish Bhaiya, Adarniya Avasthi sir and Adarniya Malini Didi for the unbelievable hospitality that was extended to us. शायद ही दुनिया में ऐसी कहीं hospitality है जैसे कि अयोध्या में है या उत्तर प्रदेश में है. And I have experienced it firsthand. You cannot imagine the limits and the length they go over there to make you feel comfortable. It's unbelievable. From the bottom of our hearts, the entire Mangeshkar family humbly thanks our beloved and most honorable Prime Minister Paramadarniya Shri Narendra Modi ji for accepting this award last year, the year of its institution. And we genuinely believe that his accepting this award in the year of its institutionalization, who should be the awardee for this award? And we all said that there can be no other name, there can be only one name, and that is that of Paramadarniya Narendra Modi ji for this award. He came here, many of you were present here, and I think his speech last year was one of the most magnificent speeches anybody has made on the topic of music and Didi. We thank him for this unbelievable Lata Mangeshkar Chowk that he has created in Ayodhya. We thank Paramadarniya Yogi Adityanath ji for making this unbelievable, this immortal memorial to Didi. It's a huge structure. Please go to Ayodhya and see it. And please go and see the progress that has taken place in Ayodhya. You will not believe it. The kind of roads, the kind of infrastructure, the kind of hotels. It is going to surely be one of the, I think, most popular tourist destinations globally. When we went there, हम लोग मतलब इतने आश्चर्यमुक्त हुए, इतने आश्चर्यचकित थे कि that memorial is bigger than this entire stage. It is made of 16 tons of bronze, and it has 92 lotuses signifying the 92 glorious years of Didi. And from all the three ways, whether you're going from Lucknow, whether you're coming from the other side, whether you're coming from here, you all get down and alight at the Lata Mangeshkar Chowk. And from there you go to the temple. It is unbelievable. It is an unbelievable feeling. And the beauty is that 24 hours, Didi's Prabhu Ramchandra songs and bhajans are playing. Be it 3 a.m. or be it 3 p.m. Please go and experience it. It is something else. One is almost getting emotional even talking about it. So, this year, when we decided who for the Lata Dinanath Mangeshkar Award, because the first year has the recipient has been an individual who is the greatest statesman and one of the greatest sons of Mother India ever. So who now? And that is when Baba said that this year the awardee is coincidentally in the family itself. Because she is Nandai, why Sangu? Why Sangu? Okay.
just taking the permission. This year she will be 90. Touch wood. Unbelievable. I completely echo what Vidyaji has said. You couldn't have been more spot on. What you saw on your flight to Paris. it's really this thing. 90 years to stand for 4 hours. Last month she was on this stage standing for 4 hours, singing more than 25 songs. One is so overwhelmed that one is at a loss of words, but because I love to talk, I will take 2 minutes more. I want to tell you that I refer to her as not as Asha Atya or Asha Auntie. I am the only person in the family who has a special name for her. Her son, my older brother, Anand, his pet name is Nandu. His charming wife and daughter also here. Hi Anu. Hi Zanai. So, his pet name is Nandu. So, Nandu chi ai. Nandai. So, the first conversation I must have had with her, I don't know, me 1-2 years probably. I think kids talk generally at that time. So I've been calling her Nandai ever since then. It's an extremely special bond. A most multifaceted artist. What can one say? Artist ke baare mein, matlab Suraj ko dikhane jaisa hai. What can I say? For us, listening to her is a learning experience. And on a personal note, let me also tell you, you know how great a singer she is. Equally, her culinary skills are that excellent. She is, once you, inke haath ka khana ek baar khaye, aadmi aajivan bhulta nahi. She is one of the greatest cooks. And many times, our conversations are hardly on music, they're over food, for some reason. Nandai, growing up in front of you for these 52 years, I really must have done something fantastic in my last life, to be at the receiving end of your love. I can't imagine that Badi Didi, Paramadarniya Lata Didi, Asha Didi, they have not done their formal education or schooling. I know Didi went to school only for 1 day, and I think Asha Auntie also followed suit. But what is amazing is that she has sung in every Indian language there is. Without an accent. I have seen her sing English, Swahili, Russian, and whatnot. It is unbelievable. Nandai, what can I say? Time is running out. You are an unbelievable, immortal, phenomenal gift that God has given to Indian culture, Indian music, and the Indian nation. And of course, the Compass will come and formally announce the award, so I won't use the word thanks. But before that, there are some special people over here who I would like to invite on stage and felicitate. Sir, may I humbly have the honor of inviting Adarniya Avnish Avasthi sir and Adarniya Malini Didi Avasthi ji on stage, so that we may, on behalf of Master Dinanath Pratishthan and Hridayesh Arts, felicitate them for their kind gesture.
जी मैंने इस शो को एंकर किया तो ऑब्वियसली इससे पहले हमारे जो संबंध हैं मंगेशकर फैमिली से वो एक परिवार की तरह है और हम बहुत सालों से हैं 15-20 साल ऑलमोस्ट 15-17 साल हो गए। तो आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूँ और ऊपर से अवार्ड जो है आशा जी को देना था। ये बहुत मतलब एक छोटे से कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मंगेशकर फैमिली ऊपर से लता मंगेशकर अवार्ड्स हैं और आशा जी को अवार्ड्स देने हैं, तो एक अलग ही फीलिंग थी एंड आई फील प्रिविलेज, ऑनर्ड एंड रियली ब्लेस्ड इन लाइफ। दैट्स व्हाट आई फील। सर आपका शेयर कोई किस्सा है जो लता मंगेशकर साथ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस को? जी किस्से तो बहुत हैं, मतलब अगर मैं किस्सा शुरू करूं तो शायद सुबह हो जाए क्योंकि बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एंड में भी हमें जब भी बातें हों या मैसेज कुछ ऐसा होता था तो उनको चुटकुले बड़े पसंद हैं, सुनता बनता ये वो चुटकुले जो बहुत लोगों को शायद मालूम भी ना हो तो वो शेयर करती थी। और कई बार तो हमारा शो देखते देखते फ़ोटो खींच के मोबाइल से भेज देती थी। तो ऐसी बड़े मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो वी रियली फील ब्लेस्ड के उनका हाथ था, आशीर्वाद हमेशा। एक्चुअली लता जी के तो एक गाना तो चुन नहीं सकते आप, अगर चुनने जाओगे तो 200-300 गाना चुन लेंगे तो ऐसे बहुत से हैं। अभी जब वो उनकी डेथ हुई उसके बाद कबीर जरा का भी गाना है, तो ऐसे बहुत से गाने, एक गाना मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा। दैट वोंट बी दिस। आपने जो आशा जी के बारे में जो पोइट्री बोला उसका 2 लाइन बोल सकते हैं? जी बिल्कुल। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है,
जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, राह की खीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है और भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कथक नृत्यांगना हूँ सबसे पहले और फिर एक अभिनेत्री हूँ, तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक और आर्ट से जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से और बहुत ही इंस्पायरिंग सा ये एक फंक्शन है जो यादगार रहेगा मेरी ज़िंदगी में और उम्मीद करती हूँ कि मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा किसी दिन यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहीं पर मेमोरीज़ हैं मेरी लता दीदी के साथ। इनफैक्ट इसी ग्रीन रूम में उनके साथ मैंने एक तस्वीर खींची थी और उन्होंने मेरे काम को सराहा था और इसी ग्रीन रूम में आज मैं आशा ताई से मिली हूँ। उन्होंने वो भी कहा कि उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा है और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। तो मैं आदिनाथ मंगेशकर और पूरे मंगेशकर फैमिली की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और इस शानदार शाम का, यादगार शाम का हिस्सा बनने दिया। मोमेंट मैं कह रही हूँ इसी ग्रीन रूम में मैं उनसे मिली थी उन्हीं के फैमिली फंक्शन में और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा जो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो काम है वो उन्हें बहुत पसंद आया था, तो मेरे लिए वो सबसे बहुत यादगार बात रही है, आशीर्वाद रहा है। सो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग अजीत दास्तां है ये, जो मेरा सबसे फेवरेट रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है मेरी हिम्मत नहीं है उन्हीं के परिवार के सामने, मतलब उन्होंने जो गाया है, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे लिए वही संगीत है, वही स्वर है, वही साक्षात सरस्वती हैं। सो लता दीदी, थँक्यू सो मच. नाही, खूपच म्हणजे माझ्या भावना खूपच हळव्या होतात, कारण एस्पेशली दीदीच्याबद्दल आम्ही अक्षरशः त्यांचे वारकरी, म्हणजे दीदी काय, आशाताई काय, यांच्या गाण्याचे आम्ही वारकरी. आणि मग त्यांचा काही प्रोग्राम दीनानाथ प्रतिष्ठानचं आम्ही न चुकता मग कुठे बाल्कनीत तर बाल्कनी असं आम्ही फाळकेचं नाव करून कुठे पुढे घुसायचा आमचा स्वभाव नाही. परंतु आता असं मला वाटतं की खूप एक आशाताईंचं पण मला खूप वाटतं की 90व्या वर्षी मी आत्ताच त्यांचा प्रोग्राम 1-2 महिन्यापूर्वी फुल प्रोग्राम त्यांनी केलेला, आणि न थकता आपण म्हणतो की डान्सिंग अँड सिंगिंग ॲट 90 इज व्हेरी डिफिकल्ट. अँड शी हॅज डन. विद्या बालनविषयी आज तिला हे मिळालं. इन्सिडेंटली आय ऑल्सो अवॉर्डेड हर. माझ्या हातातून विद्या बालनला दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड बेस्ट ॲक्ट्रेस दिलं. तर मला असं वाटतं की खूप दीनानाथ मंगेशकरांचं पण तो चॉईस एकदम बेस्ट आहे. इव्हन सगळ्यांचाच, म्हणजे ओक प्रसाद ओक आणि सगळेच, म्हणजे त्यांचे सिलेक्शनचा प्रश्नच नाही आहे. आणि मला वाटतं की असंच जी, आणि आदिनाथांचं मी कौतुक करतो की फार लवकर ते सगळं मॅनेज करायला लागलं, आणि ही स्पोक सो वेल. मला वाटतं मोदींनंतर आता मला आदिनाथ यांचाच नंबर लागू शकतो. तर बेस्ट ऑफ लक. आणि मी अभिनंदन करतो ज्या कोणाला अवॉर्ड्स मिळाले दीनानाथांच्या, आणि आशाताईंचं महत्त्वाचं की आम्ही त्यांचे मोठे फॅन्स आहोत, तर त्यांनाच हे अवॉर्ड मिळालं. खूप त्यांचं अभिनंदन फाळके कुटुंबियातर्फे. आणि मी दादासाहेब फाळकेंचा नातू, त्यांच्या मुलीचा मुलगा, खूप 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 थैंक्स. बहुत ही अच्छा लगा. और हम लोगों को स्पेशली सरस्वती देवी की जो हम लोग सोचते हैं, लता मंगेशकर, उनका फैमिली से हम लोग को इनवाइट किया, तो यहीं पे आके बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने परफॉर्म किया. उन लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह होस्टिंग की, तो बहुत ही अच्छा लगा. एक ट्रिब्यूट भी दिया लता मंगेशकर के लिए. बहुत अच्छा लगा. हम ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान और हृदय आर्ट्स के. उन्होंने हमें इतना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी दिया. बहुत दूर असम से आए हैं, भूपेंद्र के देश से, और लता दीदी और भूपेंद्र और असम बहुत ही कनेक्टेड थे. तो इतने सालों बाद हम यहाँ इतने बड़े मंच पे, और मुंबई के ऑडियंस बहुत ही लाजवाब थे. काफ़ी अच्छे से प्यार हमें दिया, और ये एक हमारी लाइफ का, आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. थैंक यू.
मंगेशकर जी का या आशा भोसले जी, तो आप बताना चाहें कौन सा फेवरेट सॉन्ग? लता दीदी का तो हर एक गाना दिल से इतना बहुत ही कनेक्टेड है, और सबसे एक्चुअली फेवरेट हमने तो मोहे पनघट और मुगले आजम, क्योंकि मम्मा और मैंने मेरी आज आवाज़ ही पहचान है। हाँ। ये फेवरेट है मेरी लता जी का। सब हर सॉन्ग ही फेवरेट और है, लता ऐसा दीदी नहीं ने बोलते। बहुत सारे एसमीज गाने एसमीज ऑडियंस को गिफ्ट किया है, और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत है वो। उषा जी, आशा जी, सब सभी लोगों ने ने गाया बहुत सारे। एसमीज में। भूपेन दा ने उन लोगों के साथ रिलेशन बना के बहुत सारे गान उन लोगों के जरिए असम को दिया, रिकॉर्डिंग किया, और बहुत अच्छी अच्छी उन लोगों का गिफ्ट है असम के लिए। मैम और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, जितने आप आसाम से यहाँ तक आए, आपका बहुत फेमस कथक यहाँ तक फेमस है पूरे इंडिया में भी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में काफ़ी बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, पर ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ही अलग था, और मतलब इतने डिग्निटरीज, जाने माने कलाकार बैठे थे ऑडियंस में, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और वही ये प्रोग्राम हमेशा यादगार रहेगी। और लता दीदी के लिए, मंगेशकर फैमिली के लिए प्रोग्राम करना, हाज़िरी लगाना, यही बहुत बड़ी बात है। सच में यहाँ का ऑडियंस कैसा एनर्जी मिला, हर टुकड़े पढ़न जो भी करो, उसके बाद ऑडियंस ने जो हम लोगों को सपोर्ट किया, सच में इट्स अ मेमोरेबल डे फॉर अस, रियली। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये शो होस्ट किया, कैसा लग रहा है आपको होस्ट करके? ऑफ कोर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इसका कारण ये है कि इससे बड़ा शो और इससे बड़ा ज़िंदगी में एक इवेंट क्या हो सकता है किसी की लाइफ में, जहाँ पे अवार्ड लता मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स हैं जो दिए जा रहे हैं, और जिन्हें दिए जा रहा है वो आशा भोसले हैं, और आप अनाउंस कर रहे हो, तो ये ज़िंदगी का ये ऐसा मोमेंट है कि दोबारा लाइफ में आने वाला नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर हैपेंड, एंड आई फील रियली ऑनर्ड, ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड, बिकॉज द काइंड ऑफ रिलेशन वी हैव विद द मंगेशकर फैमिली, इट्स लाइक अ फैमिली। सो उससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। सर, आशा जी और आपने लता मंगेशकर दोनों जन को देखा है, आपका कौन सा ऐसा दोनों जन के साथ कोई मोमेंट शेयर कीजिए, मतलब ऐसा कोई मोमेंट है आपका कि जो आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली जैसे आपकी माँ के साथ या आपकी फैमिली के साथ, अपने रिश्तों में जो रिलेशनशिप होती है, उसमें इतने मोमेंट्स होते हैं कि एक कोई मोमेंट आप पिक नहीं कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे हैं। जैसे आशा जी के साथ एक है कि आशा जी ने एक दिन मुझे बोला कि जब मैं रास्ते में कहीं था तो खाने पे बुलाया, और सारे सर्वेंट्स को सबको बैठा दिया साइड में कि ऋषिकेश जी आ रहे हो आप, मैं खुद बनाऊंगी, और खिलाया उन्होंने बना के। तो वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट है जो मरते दम तक याद रहेगा। दैट वाज ब्यूटीफुल। एंड इवन सेम लता जी डिनर पे बुलाया, या इवन माय सन, उसको भी खिलाना पिलाना या जो भी चीज़ें हैं, तो एक माँ के जैसे उन्होंने हमेशा, और बहुत प्यार करती थी। उन्होंने एक घड़ी भी गिफ्ट की थी, जाके खुद शॉप किया था और घड़ी गिफ्ट की थी। सो इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं जो आई थिंक लाइफ टाइम के लिए हैं। सर, ऐसा कौन सा गाना है लता मंगेशकर मैम का और आशा मैम का कि आपको गुनगुनाना चाहिए? कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका जो आप हमेशा मतलब सुबह उठते ही सुनना चाहेंगे आप? कुछ ऐसा कुछ है? मतलब ऐसे एक्चुअली लास्ट एग्ज़ाम ऐसा बोलोगे आप तो शायद एक गाना ना निकाल पाऊँ, क्योंकि ऐसे हज़ारों गाने हैं। मैं लता जी को रात दिन सुनता ही रहता हूँ, गाड़ी में हैं तो, बाहर हैं तो, और आशा जी को भी। तो एक गाना मैं कोई ऐसा उसके साथ बायस नहीं हो सकता हूँ। सारे ही गाने मुझे पसंद हैं, मतलब पुराने ज़माने से लेके नए तक, वीर ज़ारा तक, लास्ट सारे सॉन्ग्स मुझे पसंद हैं। एंड सेम आशा जी। तो भी सर एक गुनगुनाना बनता है आज। एक आशा जी वाला याद आ रहा मुझे। निगाहों निगाहों तुम जादू चलाना, मेरी जान तुमने है सीखा कहाँ से, इशारों इशारों में दिल लेने वाली, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। सर, थैंक यू सो मच।